سب کے لیے ہاللویا زوردار تالیاں بجائیے. پریز دی لارڈ. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. تشریف رکھیں. آئیے میرے جی سلام خدا کی طرف رخ کریں گے. آئیے میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل اس کا 28واں باب. برد شان پڑھنے میں رہنمائی کریں گے. ان کے پاس مائک ہے. متی کی انجیل اس کا 28واں باب ہے اور کلام خدا میں یوں لکھا ہے. اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن وہ پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا. اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے. فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا. وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا. اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے وہاں تم اسے دیکھو گے. دیکھو میں تم سے کہتا ہوں کہہ دیا ہے. اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی. آمین آمین ہاللویا. یہ آج کا جو میسج ہے جو آج کا جو میسج ہے وہ ہم سب تک پہنچا کہ مسیح خداوند جب صلیب پر لٹکائے گئے اور جمعے کے روز اتارا گیا اور پھر ان کو قبر میں رکھا گیا. تو جب قبر میں رکھا گیا تو اس کے دوران کچھ ایسے معاملات ہوئے, کچھ ایسی باتیں ہوئی, ان کو جاننا بہت ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ شروع میں ہم نے پڑھا کہ مریم مگدلینی اور کچھ عورتیں کہاں جاتی ہیں؟ کہاں جاتی ہیں؟ یہ قبر پر جاتی ہیں, لیکن قبر پر جانے سے پہلے یہ کچھ پروگرام کریٹ کرتی ہیں. وہ کون سا پروگرام ہے؟ یہ عورتیں دل میں سوچتی ہیں کہ ہم نے یسوع مسیح کی اپنے استاد کی قبر میں جانا ہے. لیکن قبر پر جانا اتنا آسان نہیں تھا. کیوں اتنا آسان نہیں تھا؟ سمپل سی بات ہے کہ وہاں پر حکومت وقت نے کچھ بڑے اقدامات کیے تھے جس کی وجہ سے یہ گھبرا رہی تھی. اور یہ سبت کے روز ہفتے کے دن یہ بہنیں بیٹھی ہوئی تھی اپنے گھر پر اور یہ آرام سے بیٹھے نہیں تھے, یہ چھپے ہوئے تھے, چھپ کر رہ رہے تھے اور یہ سوچ میں پڑ گئے. سوچتی تھی کہ ہم نے مسیح خداوند کی قبر پر جانا ہے, لیکن کیسے جائیں؟ کیسے جائیں؟ کیونکہ وہاں پر جو پہرے دار ہیں, وہاں پر جو پرابلمز ہیں, ان کو ہم فیس نہیں کر سکتے. آئیے اس حوالے کو پڑھیں گے. متی کی انجیل اس کا 27واں باب. متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 62ویں آیت 62. دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا, دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا, سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پیلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا جی خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا. بس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائے. اب ہوا تھا جب آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے روز مسیح خداوند کو صلیب پر لٹکا دیا گیا اور اس کے بعد جو دوسرا دن ہے, سردار کاہن اور فقیہ پیلاطس کے پاس جاتے ہیں. یہ وہی پیلاطس ہے جو حاکم ہے, روم کا یہ حاکم ہے اور اس کے بنا کوئی آرڈینیشن پاس نہیں کیا جاتا. سردار کاہن کس کے پاس جاتا ہے؟ پیلاطس کے پاس.
थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए प्लीज, ये थोड़ी मुश्किल हो गई है, आगे आ जाए। ये जगह खाली है जी, इसको फिल करें। और हुआ क्या, और दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार दाऊद और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर क्या कहा, खुदावंद ऐ मालिक ऐ पिलातुस, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? उस धोखेबाज ने, किसके बारे में? ये मसीह खुदावंद के बारे में कह रहे हैं कि उस धोखेबाज ने, भाई दिलशाद साथ साथ रहिए, जीते जी कहा था, जब वो जिंदा था जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। ये मसीह खुदावंद ने कहा। और ये सरदार काहिन पिलातुस को ये बता रहे हैं कि उसने कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अब क्या करना है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कह दे कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो, और ये पिछला जो धोखा है ये पहले से बुरा हो, ज्यादा बुरा हो। आगे बढ़ेंगे। पिलातुस ने उनसे क्या कहा? पिलातुस ने उससे कहा, हाकिम वक्त ने सरदार काहिनों और फरीसियों से कहा, सुनो, तुम्हारे पास ये हुक्म है, तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है, पहरेदार है, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। उस कब्र की जहां पर मसीह खुदावंद दफनाए गए हैं, उस कब्र की क्या करो? निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए। बस वो यानी सरदार काहिन और फरीसी पहरेदारों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। पत्थर पर क्या कर दी? मोहर, सील लगा दी कि यहाँ पर बैन है, इस पत्थर को कोई हिला नहीं सकता। जुम्मे के दिन मसीह खुदा को सलीब दिया गया और दूसरे दिन, हफ्ते के दिन, सब्बत के दिन, यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन सब्बत का दिन है। और ये पिलातुस के पास जाते हैं और उनको ये डर है कि कई शागिर्द मसीह खुदावंद की, अपने उस्ताद की, अपने रब्बी की लाश को चुरा न ले जाए। अगर वो चुरा के ले गए और वो कहेंगे कि देखो यीशु ने कहा था मैं जिंदा हो जाऊंगा, तो वो तो जिंदा हो गया है। उनको डर था। क्या किया उन्होंने कहा कब्र पर पहले फौज को तैनात कर दो। ये नहीं, उन्होंने कहा कि वहां पर जो पत्थर है उस पत्थर के ऊपर मोहर लगा दी जाए कि कोई इस कब्र के नजदीक ना आ सके। तो जब ये मोहर लगा दी गई, उसी दिन हफ्ते की रात को जुम्मे को क्या किया? सलीब पर लटकाया गया। सब्बत वाले दिन, दूसरे दिन हफ्ते को मोहर लगा दी, सिपाही खड़े कर दिए। और उसी रात, सब्बत की रात, कुछ औरतें, मरियम मगदलीनी और दूसरी औरतें प्लान करती हैं, हमने यीशु की कब्र पर जाना है। कहां जाना है? अब उनको ये मालूम पड़ गया है कि यीशु मसीह की कब्र पर जाना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है, वहां पर पहरा लगा हुआ है। क्योंकि हाकिम वक्त ने, पिलातुस ने यह हुक्म जारी किया है कि कब्र के पास कोई शख्स ना आ सके। अगर कोई शख्स आए तो उसे संसार कर दिया जाए। और उनके लिए तो यह बहुत ज्यादा लागू था जो मसीह खुदावंद के साथ साथ रहा करते थे। लेकिन ये औरतें चाहती हैं कि हम अपने मसीहा की, हम अपने उस्ताद की कब्र मुबारक पर जाएं, लेकिन वहां पर जाना इतना आसान नहीं है। आप जानते हैं कि जब किसी जगह पे, किसी चीज पर कोई सील्ड होने का कोई ऑप्शन लगा दिया जाता है, या किसी दुकान पर यह लिखा जाए दिस शॉप इज सील्ड, तो आप उस दुकान को खोल नहीं सकते, उस घर को खोल नहीं सकते। तो ये तब भी था
पिलातुस ने इस चीज को रिकमेंड किया और सरदार ताही से कहा उस पत्थर को सील कर दो, और यही नहीं वहां पर सिपाही भी ले जाओ। और ये मरियम मगदलीनी और दूसरी औरतें चाहती हैं कि हम अपने खुदावन की कब्र पर जाएं, लेकिन कैसे? ये दिल ही दिल में घबरा रही है, इनके लिए बड़ा मुश्किल मरहला है। हम कैसे जाएंगे? सिपाही तो हमें मार डालेंगे, वो तो हमें धक्के देंगे, और वो ये कहेंगे कि ये हुकूमती नामा है, तुम यहाँ पर नहीं जा सकती। वो तो दूर से खड़े होकर हमें इशारा करेंगे, गो बैक, क्या करेंगे? लेकिन हमने यीशु की कब्र पर जाना। हालेलुया। उनका ये माइंड था, वो चाहती थी कि हमने किसकी कब्र पे जाना है? उसी यीशु की कब्र पर जिसके साथ साथ हम रहे। इन औरतों ने उन तमाम मौजज़ात को होते हुए देखा है, उन तमाम वाक़ियात को ये जानती हैं। ये औरतें मुबारक कैटेगरी की आती हैं। आइए थोड़ा और आगे देखिए जी भाई दशरथ, 28 बाब में आइए, 28 बाब की 5वीं आयत, दूसरी आयत देखेंगे। हुआ क्या? जब ये शुभ को निकली तो लिखा है, और सब्बत के बाद, हफ्ते को क्या होता है? सब्बत होता है। किनका सब्बत होता है? किनका? हफ्ते को कौन सा सब्बत होता है? किसका? ये याद रखना बहुत जरूरी है। यहूदियों का हफ्ते के रोज सब्बत होता है, और लिखा है सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन यानी इतवार के दिन, आज के दिन भूख फटते वक्त। आज जब मॉर्निंग के टाइम में उठा हुआ था, बल्कि हम सब उठे हुए थे, तो मैं देख रहा था कि सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता, जो ये लफ्ज लिखा है भूख फटते वक्त, अभी अंधेरा ही होता है, तो थोड़ी सी रोशनी जब होती है तो लिखा है कि भूख फटते वक्त मरियम मगदलीनी और मरियम क्या करने लगी? कब्र पर आई, कब्र को देखने लगी। लेकिन ये जब ये घर से निकली, ये खौफजदा है, आपस में रास्ते में बात करी है, क्या होगा अगर सिपाहियों ने देख लिया तो हम कैसे छुपेंगे, कहां छुपेंगे? इनके दिल में खौफ है, इनके दिल में डर है, लेकिन इनको क्या पता कि थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंचा आया था। हालेलुया। खुदा खुद रास्ता मुहैया करता है। ये मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम जब कब्र पर पहुंची तो दूसरी आयत लिखा है जी भाई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया। कितना बड़ा? एक होता है छोटा, एक होता है, लिखा है कि एक बड़ा भूचाल आया। क्यों आया? क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया। वो जो मरियम मगदलीनी और दूसरी औरतें सोचती थी कि हम इतने बड़े पत्थर को कैसे हटाएंगे, यही नहीं, वो ये सोचती थी कि हम कब्र तक पहुंचेंगे कैसे। पत्थर को हटाना तो दूर की बात, वो ये डिस्कस कर रही थी हम कब्र तक कैसे पहुंचेंगे, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। वहां पर तो सिपाही है, हुकूमत की तरफ से ये नामा दर्ज किया गया है कि कोई भी कब्र की तरफ रुख ना करे। लेकिन हुआ क्या? खुदा ने उनके लिए ये रास्ता तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने खुद उनके लिए रास्ता तैयार किया, और वो सोच रही थी कि खुदा का फरिश्ता आसमान से नीचे आया, यही नहीं उसने पत्थर को लुढ़का दिया, और उस पत्थर पर क्या किया? उस पत्थर पर बैठ गया। उसके हक में लिखा है उसकी सूरत बिजली की माने थी और उसकी पोशाक बर्फ की माने सफेद थी। और क्या हुआ? डर से निगाहबान कांप उठे। वो जो फरिश्ता नीचे आया, फरिश्ते ने पत्थर को लुढ़का दिया, और ये नहीं, वो जो सिपाही थे ना, जो पिलातुस के सिपाही थे, जो रोम के सिपाही थे, वो जो वहां पर तैनात थे कि कोई भी कब्र की तरफ ना आ सके, वो क्या हुआ उनके साथ?
वो लिखा है कि उसके डर से, यानी फरिश्ते के डर से निगमान कांप उठे। और कौन सी हालत में? कौन सी हालत में? भाइयों कौन सी हालत में? बहनों कौन सी हालत में? वो जो सिपाही थे वो मुर्दा हालत की तरह पड़ गए, सिर्फ फरिश्ते की आने की वजह से। और फरिश्ता खुदा की तरफ से आया है। जब फरिश्ता आया है वो खुदा की तरफ से आया है। और जब फरिश्ता आया, औरतें भी पहुंच गई। क्या हुआ? 5वीं आयत, फरिश्ते ने औरतों से क्या कहा? तुम ना डरो। फरिश्ते ने औरतों से क्या कहा? वो तो रात की डरी हुई है, उनके दिल में ये डर है। किसका डर है? फरिश्ते का डर है? नहीं, फरिश्ते का डर नहीं है। वो तो सिपाहियों से डरी हुई, वो तो रोम की हुकूमत से डरी हुई है, वो तो पत्थर से डरी हुई है। उनको क्या पता था कि कल फरिश्ता आएगा? उनको क्या पता कि फरिश्ता पत्थर को लुढ़का देगा? उनके दिल में डर ये था कि हम पत्थर को कैसे पीछे करेंगे। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मर्द कोई हमारे साथ जा नहीं सकता। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंची और फरिश्ता वहां पर था, फरिश्ते ने सबसे पहले तसल्ली के अल्फाज उन तक पहुंचाए। हालेलुया, हालेलुया। कोई शख्स परेशान हो, मुसीबत में हो, अगर कोई तसल्ली के अल्फाज उसके लिए कह दे तो कितना दिल को सुकून मिलता है। ठीक बात है, कितना सुकून मिलता है। मरियम मगदलीनी और दूसरी औरतें डरी हुई है, घबराई हुई है। एक तो इस वजह से कि पत्थर को कैसे हटाएगी, सिपाहियों से कैसे बात करेंगे। लेकिन जब वो ये माजरा देखते हैं तो फरिश्ते को देखकर वो घबरा जाते हैं। लेकिन फरिश्ता उनसे कहता है, क्या नगर? ना डरो। आप जानते हैं कि यही फरिश्ता कभी मुकद्दसा मरियम के पास गया था। हालेलुया। ये फरिश्ता कभी मुकद्दसा मरियम के पास गया था और मुकद्दसा मरियम भी डर गई थी। मुकद्दसा मरियम से भी यही कहा, ऐ मेरी बेटी खौफ न कर। तसल्ली की बातें फरिश्ते ने तब भी कहा, डरना नहीं है, खौफ नहीं करना। और तब भी आज ये वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी औरतों से कहा, ऐ मेरी बेटियों क्या नहीं करना? खौफ न करना, डरना नहीं। क्यों? आगे, ना डरो, ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो। तुम किसको ढूंढती हो? मैं जानता हूँ तुम कब्र पर क्या लेने आई हो। इस चीज का मुझे आइडिया है, क्योंकि खुदा ने मुझ तक ये बात पहुंचाई है। और फिर मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं खुदा की तरफ से आया हूँ और मुझे मालूम है कि तुम किसके लिए आई हो। लेकिन गौर से सुनो, तुम जिसके लिए आई हो, गौर से सुनो जी, वो यहाँ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। फरिश्ते ने कहा कि तुम जिसके लिए आई हो वो यहाँ पर नहीं है। तुम उसके लिए आई हो जिसको तुमने देखा सलीब पर लटका हुआ। तुमने उसको जिसको देखा कि वो कोड़े खा रहा था तुम्हारी खातिर, उसकी पसली में नेज़ा लगा तुम्हारी खातिर, तुमने देखा। उसकी लाश को पिलातुस से मांगा और फिर कब्र में उतारा। इन्हीं औरतों ने सारा ये माजरा होते हुए देखा है। और तुम जिसको ढूंढने आई हो, जिसको तुम ढूंढने आई हो, मिलने आई हो, वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। यीशु हालेलुया जी उठा है। फरिश्ता आकर को कहता है कि तुम्हें याद रही कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाला किया जाए और मसरूफ हो, और कहने के मुताबिक जी उठे। यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने शुरू में एक बात बताई मेरी बहनों, ये दीन मसीहत के अंदर बात पाई जाती है और किसी मजहब के पास ये कॉन्फिडेंस नहीं है। कोई है तो बताए मुझे। इस चीज की मैंने स्टडी की है। लोग ईद मनाते हैं, अलग अलग जगह पर जाकर उनकी ईद मनाते हैं जो मरे हुए हैं, लेकिन हम उसकी ईद मनाते हैं जो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदा है, इसके अलावा और भी कुछ लोग जिंदा हुए थे।
आइए देखेंगे पहला सलातीन। की सेटअप की टाइम टाइम कितना टाइम है? मेरे पास कुछ ही टाइम है, जल्दी से पहला सलातीन बाइबल के दस में देखेंगे और कौन कौन जिंदा हुए। पहला सलातीन उसका 17 बाब 17 की 22 सलातीन की किताब है। ये सल्तनत के बारे में लिखा है यहाँ पर, और उसका 17 बाब और उसकी 22वीं आयत। जी ब्रदर। और खुदावन ने एलिया की फरियाद सुनी। और खुदावन ने किसकी फरियाद सुनी? एलिया की। सारपत की बेवा के बारे में लिखा है कि उसका एक बेटा था, और हुआ क्या? उसका बेटा क्या हुआ? उसका बेटा क्या हुआ भाइयों? क्या हुआ? बाइबल में लिखा है कि उसका बेटा मर गया, और जब मर गया तो वो एलिया के पास आती है, तो क्या हुआ? जी ब्रदर। और लड़के की जान उसमें फिर आ गई। बाइबल मुकद्दस कौन सी आयत पढ़े ब्रदर? 22। जी 22 है, जी पढ़े। और लड़के की जान उसमें फिर वापस फिर आ गई। और हुआ क्या? और खुदावन ने एलिया की फरियाद सुनी। एलिया ने खुदा से दुआ की। जब वो बेटा मर गया तो एलिया नबी ने खुदा से फरियाद की, दुआ की, और लिखा है और खुदा ने एलिया की फरियाद सुनी, और लड़के की जान उसमें क्या आई? फिर आ गई। फिर दोबारा आई। और क्या लिखा है? वो जी उठा। वो लड़का जी उठा। ये जी उठने का वाकया एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ये नहीं, दूसरा सलातीन 13वें बाब में देखेंगे। सलातीन की दूसरी किताब उसका 13वां बाब और उसकी 21वीं आयत। 13वें बाब की 20वीं आयत से पढ़ेंगे। और एलीशा ने वफात पाई। और एलीशा ने वफात पाई। ये एलिया का शागिर्द एलीशा है। जब इसने वफात पाई और उन्होंने उसे दफन किया। और जब नबी को दफन कर दिया, और नए साल के और फिर नए साल के शुरू में मुआब के जत्थे मुल्क में घुस आए। मुल्क के अंदर घुस आए। और ऐसा हुआ कि जब वो कैसा हुआ? देखिए, नबी क्या हुआ है? नबी क्या? नबी मर गया है। नबी मर गया है तो फिर दफना दिया गया, और फिर ऐसा हुआ कि जब वो एक आदमी को दफन कर रहे थे, एक जत्था आ रहा था, लोग आ रहे थे। नबी की कब्र में नबी को दफना दिया गया है, और वो टाइम हो गया है दफनाए हुए, लेकिन एक जत्था उसी राह से गुजर रहा है, और उनके पास एक बॉडी है। और क्या हुआ? उस बॉडी को जब वो नजदीक आए तो ऐसा हुआ कि जब वो एक आदमी को दफन कर रहे थे तो उनको एक जत्था नजर आया। उनको एक जत्था नजर आया। जी। सो उन्होंने उस शख्स को किसकी कब्र में डाल दिया? एलीशा की कब्र में डाल नबी दिया। की कब्र में डाल दिया गया। और वो शख्स एलीशा की हड्डियों से टकराते ही, और वो जो शख्स है जो मुर्दा है, जैसे वो एलीशा की हड्डियों से टकराया तो क्या हुआ? जी उठा। वो भी जी उठा। ये नबी की हड्डियों में ताकत देखें। एलिया के दौर में भी एक मुर्दा जिंदा हुआ, और उसके शागिर्द एलीशा के दौर में भी जब उसकी हड्डियों को मुर्दा लगा तो वो क्या किया? मुर्दा जी उठा और अपने पांव पर और वो अपने पांव पर खड़ा हो गया। देखिए, यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। जब मुर्दे को दफनाया जाता है, आज तो तकरीबन बॉडी खत्म होने में और जो हड्डियां हैं वो जो पाउडर बनती है वो तकरीबन 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं, लेकिन पुराने दौर में तकरीबन 6 महीने से लेकर तकरीबन 1.5 साल का टाइम लग जाता था हड्डियों को खत्म होने में। तब और अब का दौर अगर देखें तो बड़ा फर्क है। तब के खानों में मिलावट नहीं थी, तब की हड्डियां मजबूत थी, लेकिन आज के खानों में क्या है? मिलावट है। हम किसी को दफनाने के लिए जाएं और वो 2 महीनों के अंदर वो सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या सबब है? तब कोल्ड ड्रिंक नहीं थी। तब क्या नहीं थी? तब कोल्ड ड्रिंक नहीं थी। आज कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक हड्डियों की खराबी का सबब बनती है। तब खाने अच्छे थे,
तब पानी अच्छा था, आज खानों में मिलावट है, आज पानी केमिकल वाला है। तब पिज़्ज़ा बर्गर नहीं थे, आज क्या है? आज पिज़्ज़ा बर्गर है। तब अच्छी रोटी थी, अच्छा आटा था, आज आटे के अंदर क्या है? मिलावट है, सूजी निकाल कर हम खाते हैं। इसी वजह से जब नबी को कब्र में रखा, उसका जिस्म तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी हड्डियां मौजूद थी, और जब उसकी हड्डियों के साथ दूसरा मुर्दा अटैच हुआ तो लिखा था वो जिंदा हो गया। हालेलुया। यही नहीं, अगर नए एहदाम में देखें, अगर हम ये देखें यूहन्ना के इंजील उसके 11वें बाब के उस पैसेज को, तो क्या है? आप जानते हैं कि मरियम और मार्था के एक भाई था जिसका नाम क्या नाम था? लाजर मर चुका है। मसीह खुदावन के पास ये बात पहुंची, थे तेरा दोस्त लाजर मर गया है और तू चल और देख उसको पता कर। यीशु ने कहा कि वेट करो, रुको। तो क्या हो, जब मसीह खुदावन वहां पर गए तो वो कहती हैं, बहनें कहती हैं, किसकी बहनें? लाजर की बहनें मसीह खुदावन से, उस्ताद से, रब्बी से कहती हैं, ऐ खुदावन, ऐ उस्ताद, अगर तू यहाँ पर होता तो हमारा भाई ना मरता। अगर तू यहाँ पर होता तो हमारा भाई लाजर ना मरता। लेकिन क्या हुआ? आइए इस आयत में पढ़ेंगे 11वें बाब की 43वीं आयत। जी भाई दिलशाद, यूहन्ना के इंजील उसका 11वां बाब, जल्दी से 11 की 43। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा, यीशु मसीह ने ये कहकर बुलंद आवाज से पुकारा, ए लाजर, ऐ लाजर, निकल आ। निकल आ। तो हुआ क्या? जो मर गया था, जो लाजर मर गया था, वो कफन से, वो क्या हुआ? कफन समेत हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, कब्र से वो कफन समेत बाहर निकल आया, और उसका चेहरा लिपटा हुआ था, रुमाल में लिपटा हुआ था। यीशु ने कहा, खोल कर इनको जाने दो। यहाँ पर भी मुर्दा जिंदा हुआ। यही नहीं, यहाँ इनकी बेटी को भी यीशु ने जिंदा किया। हालांकि लोग आए कहते हैं, ऐ उस्ताद, मालिक को डिस्टर्ब ना कर, छोड़ दे, क्योंकि तेरी बेटी क्या है? मर गई है। लेकिन मसीह खुदावंद अपने फरिश्तों के साथ याईर के घर पर जाते हैं और उसके हक में क्या कहते हैं? हाथ पकड़ कहा, ऐ बेटी उठ जा। तो लिखा है कि वो उसी वक्त फिर बार उठकर उनके साथ चलना पैदा कर दिया। हालेलुया। लेकिन कोई खास बात बताने वाला हूं, यहाँ पर भी एलिया के दौर में, अलीशा के दौर में याईर की बेटी और लाजर भी जिंदा हुए, लेकिन इनके जिंदा होने में और यीशु के जिंदा होने में फर्क है। हालेलुया। यहाँ पर जिंदा होने में और यीशु के जिंदा होने में फर्क है। यहाँ पर जितने भी लोग जिंदा हुए, ये फिर दोबारा मर गए थे। ये फिर दोबारा मर गए थे। जैसे यीशु मरा, ये भी मरे। यीशु को दफन किया, इनको भी दफन किया। ये भी जी उठे, यीशु भी जी उठा, लेकिन ये फिर दोबारा मर गए और खत्म हो गए। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपका और मेरा मसीहा जब एक बार दफन हुआ, जिंदा हुआ, और उसके हक में लिखा है कि वो अब्दुल अबाद जिंदा रहने वाला मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक आखिरी आयत पढ़ेंगे मुकाशवा की किताब में। मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब, मुकाशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी हम देखेंगे 17 आयत। मुकाशवा की किताब जिन्होंने खोला है, लास्ट भी मेरे साथ पढ़िए। जी भाई दिलशाद, ये लास्ट नाइट में मैंने सनराइज के दौरान मैंने ये रीड की थी। जी बड़ी खूबसूरत बात है, गौर से सुनिएगा। जिसके कान हो, मैं चाहता हूँ इसको नामी आज से पढ़ेंगे ताकि डिटेल के साथ पता चल जाए। मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी नामी आयत। बस यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा क्या है? शरीक हो। खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पतमस कहलाता है, कि खुदावंद के रूह में आ गया। खुदावंद के रूह में आ गया। अभी ये मरा नहीं है,
یہ پتمس کے جزیرے پہ ہے اور یہ بھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے، لیکن اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ روح میں آ گیا اور یہ آسمان پر چلا گیا۔ کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں؟ کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ جی بتائیں کس کے بارے میں؟ یہ یوحنا عارف کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ روح میں آ گیا اور کہتا ہے کہ میں آسمان پر چلا گیا۔ جب آسمان پر چلا گیا تو 12ویں آیت میں لکھا ہے میں نے اس آواز دینے والے کو کیا کیا؟ دیکھنے کے لیے، بھائی دشاد ریڈ کر دیں، دیکھنے کے لیے منہ پھیرا، دیکھنے کے لیے منہ پھیرا، جس نے مجھ سے کہا تھا، جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا، اس کا سر اور سفید بال اون کی بلکہ سفید اون کی مانند اور اس کی آنکھیں شعلہ کی مانند تھی اور اس کے پاؤں خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں دبایا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی۔ آگے، اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، پڑھتے جائیے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ یہ یوحنا یسوع مسیح کو دیکھ رہا ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کیا؟ 17ویں آیت وہ کہتا ہے جب میں نے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ جب میں نے یسوع مسیح کو دیکھا تو اس کے پاؤں میں کیا کیا؟ مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، کیا نہ کر؟ خوف نہ کر۔ جیسے کبھی فرشتے نے مقدسہ مریم سے کہا خوف نہ کر، مریم مگدلینی اور عورتوں سے کہا جو قبر پہ آئی اے میری بیٹیوں خوف نہ کر، یسوع مسیح یوحنا سے کہتے ہیں کیا نہ کر؟ خوف نہ کر، میں اول اور آخر، یوحنا دیکھ میں ہی اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں۔ اور کیا ہوں؟ دیکھ میں مر گیا تھا اور تو جانتا ہے جب میں صلیب پر لٹکایا گیا تھا اور تو اور میری ماں مقدسہ مریم موجود تھی، سامنے دیکھا اور تو نے دیکھا میرے ہاتھوں اور پاؤں پہ تیر کیسے ٹھوکے گئے، تو نے دیکھا میرے سر پر کانٹوں کا تاج کیسے رکھے اور تو نے دیکھا میری حالت کیا تھی، تو نے دیکھا میری پسلی پر کیسے نیزہ مارا گیا۔ یوحنا تو جانتا ہے میں صلیب پر مر گیا تھا، میں کہاں پر؟ میرے بہنوں، یوحنا نے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یوحنا سے کہتے ہیں دیکھ میں زندہ ہوں اور مر گیا تھا، میں مر گیا تھا اب کیا ہوں؟ زندہ ہوں۔ اور اس کے حق میں وہ کہتا ہے کہ میں عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ کیوں؟ آگے لکھا ہے اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اور کیا یسوع مسیح نے 5 چیزوں پر فتح حاصل کی۔ سب سے پہلے کس پر؟ یہ آپ نے بولنا ہے کس پر؟ آواز کم ہے۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اور 4 اور صلیب پر، موت پر، قبر پر، ابلیس پر اور گناہ پر یسوع مسیح زندہ ہو کر فاتح ہے اور آج ہم اس کی یاد میں موجود ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ وہ زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا۔ جیسے یوحنا سے کہا یوحنا میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، میں پھر دوبارہ آؤں گا اور اپنے لوگوں کو جو مقدسین ہیں، کون سے ہیں جو مقدسین ہیں، ان کو اپنے ساتھ اوپر لے جاؤں گا، کیونکہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں میرے لوگ بھی رہیں گے۔ آمین۔ خدا آج کے کلام کو وسیلے سے آپ تمام کو بڑی برکت دے۔